वो खौफ जो दिल में है जाने दो उसे, वो खौफ जो दिल में है जाने दो उसे, जिंदगी का असली रंग पाने दो उसे। कमजोरी नहीं ये हौसला है हमारा, कमजोरी नहीं ये हौसला है हमारा, खुद को खुल के एक बार आजमाने दो उसे। Good morning and welcome back, friends, to another episode of Money Mindset Master with Vikas Joshi. Friends, we have started this series with the sole purpose of growth, change of mindset from restricted mindset towards the growth mindsets. We are moving from financial accumulation towards financial stability. And in the process, the first step was to setting up of goals. Yes, we have understood why the goals are to be set, and we have also understood how to trade the path that we have set to achieve our goals. As we are moving towards our goals, we came across an interesting term called limiting beliefs. Now, these limiting beliefs, they are the most important part that will help you to understand why you are being away from your goals, why you are not being so much of successful as you could have been, or why your potentials were not explored to the fullest. Because limiting belief, ये धाराएं बना ली आपने, these are the limiting beliefs that you are ingrained in you unknowingly, जानबूझकर नहीं, ऐसे ही बन गई, कभी बातों बातों में बन गई, बचपन से बन गई, पास्ट एक्सपीरियंसेस से बन गई। माने क्या, whenever we are talking of this limiting belief, these are the ingrained belief. आपने बनाए नहीं, बन गए। अरे तो रहे कैसे? Because you didn't take them to the logical end. That is why it is necessary that we remove these limiting beliefs. ये जो धाराएं बन चुकी है आपके मन में, उसे पहले एड्रेस करना पड़ेगा. Because every time when you take any task or every time you set a goal, your mind responds first and tells your brain, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है. ओह, so your mind is telling you that your potential is not to take on that goals or not to achieve those goals. अरे नहीं नहीं ये गलत है ना. अब ये धाराएं बनी कैसे? बनी इस वजह से पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसे कुछ आ गया जहां सेटबैक आ गया. और आमतौर पे ये बचपन से जो चले आ रहे चीजें हैं वो हम इग्नोर करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारा मन उसे इग्नोर नहीं कर पाया, वो मन में रह गई. जैसे आमतौर पे कहते हैं ना, जैसे हर घर में होता था, अरे तुम्हारे मार्क्स कैसे कम आ गए, बाजू वाले राजू का देखो कितना अच्छा आ गया, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है. ये जो डायलॉग्स है वो इतने इजीली हमारे घर वाले, हमारे दोस्त लोग, हमारे सीनियर्स जो भी थे, वो इतनी इजीली बातें करते थे. दे डिडंट इवन थॉट कि व्हाट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेसेस दे आर इनग्रेनिंग इन यू. और आपके मन में धारा बन चुकी है, ये मेरे लिए तो बना नहीं है. हालांकि सच्चाई वो नहीं है. सच्चाई ये है कि हर चीज आपके लिए बनी हुई है. जो आप चाहो वो आप बिल्कुल पा सकते हो. सिर्फ दिशाएं डिफाइन करनी होती है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए. इसीलिए यू हैव टू इरेज दिस लिमिटिंग बिलीफ. हमको ये धाराएं निकाल देनी है. दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग सो हार्ड ऑन दिस लिमिटिंग बिलीफ्स. आई हैव टेकन एफर्ट्स टू नोट डाउन ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल हो सकते उतने लिमिटिंग बिलीफ मैंने लिखे और उनको एड्रेस करता चला गया. And round about there are 63 to 64. Yes, friends, we have talked about 63 to 64 limiting beliefs. वो मन में कुछ भी आ सकता है. हमारे अचीवमेंट को रोकने के लिए तो कुछ भी आ सकता है. So I have addressed them. So first and foremost part is we have to erase these limiting beliefs. Today's limiting belief is that being vulnerable is far too dangerous. That is, it expresses the belief that opening up, showing one's true ambitions, weaknesses, or insecurities can lead to significant harm or negative consequences.
It suggests that exploring oneself emotionally or psychologically makes a person susceptible to pain, rejection, or exploitation. This belief often stems from past experiences of hurt or betrayal, societal norms that equate vulnerability with weaknesses or personal fears of being judged or hurt. It stems from the idea that exposing one's true self, emotions, weaknesses, or insecurities can lead to harm, rejection, or betrayal. This belief often develops as a protective mechanism, especially if someone has experienced negative consequences from being vulnerable in the past. So, this belief is a mere result of the past experiences. So, that may be traumatic experiences, betrayal, rejection. नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मत करो, नहीं तुम्हारे हाथ में ही नहीं देना चाहिए, बिल्कुल तुम ऐसे हो ही नहीं. ये जो आपके बारे में कोई और बोले जा रहा है, first and foremost, why have they formed that opinion? Because you are the one who has projected that. ऐसे थोड़ी ना कोई आके बोले गए तुम्हारे बस की बात नहीं है. ये आपने जो प्रोजेक्शन दिया वही तो वापस आ गया आपके पास. So you have projected that you are not capable of such type of things, and hence you are experiencing that. And that past experience has now been ingrained in you so firmly that you consider yourself to be weak, and that you will not be able to shoulder any of these higher responsibilities or any responsibilities as per whatever the work or whatever the assignment may be. These are also formed because of the cultural influences. है ना, जो आजू बाजू में बैठे हैं तो बोल दिया ऐसे ही. जैसे हम घर में हैं तो माँ बाप भाई बहन एल्डरली जो भी रहेंगे वही डिसाइड कर लेते हैं. कभी प्यार के खातिर करते हैं तो कभी सोच के कि नहीं ये बिल्कुल उसकी ताकत ही नहीं है करने की, ये सोच के भी हो सकता है. लेकिन सोच वही है कि आप नहीं कर पा रहे हो. इन अ वे दे आर क्रिएटिंग अ लॉस फॉर यू. भले प्यार से हो या किसी विचार से हो, सोच वही है कि तुमको नहीं देना है, तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है. अब ये इनग्रेन आपके मन में बैठ गया, अरे वो बोल रहे तो सच्ची में नहीं होगा. यू ऑल्सो डिडंट ओपोज इट, neither you did try to take it to the logical end, neither you did question them, because नहीं होता ना, घर में कैसे एल्डरली को क्वेश्चन करेंगे. हम बोलेंगे ठीक है बाबा नहीं है तो नहीं, अभी क्या करेंगे. लेकिन ये धारा बन चुकी मन में, ये प्रॉब्लम है. सो द सोसाइटल नॉर्म्स, कल्चरल मैसेजेस ऑफन glorify the strength, independence and others while viewing vulnerability as weakness. अब यही डिसाइड करते हैं ना, जो बाकी सब लोग थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं ये वीक है, इतना नहीं कर पाएगा. अभी डिसाइड कर लिया तो कर लिया. बट यू शुड हैव टेकन इट टू द लॉजिकल एंड. नाउ इज द टाइम दैट यू प्रूव देम रॉन्ग. यू हैव टू रिमूव दिस लिमिटिंग बिलीफ, फ्रेंड्स. So the personal relationships, the negative feedback that was received by you, or I should correct myself that it was projected by you. ऐसे कैसे कोई आदमी आपको ऐसे बोल सकता है तुम्हारी बस की बात नहीं है. तुमने प्रोजेक्शन तुम्हारा पॉजिटिव हुआ ही नहीं है. हुआ नहीं क्योंकि ये लिमिट आपके मन में घर करके बैठ गया और आपने भी उसको लॉजिकल एंड तक नहीं लेके गए. उसको उतना अहमियत आपने दी नहीं. I don't wish that you give importance to what others say, but I wish that you give importance to what they are talking of. They are talking that you are weak. Oh, they are talking that you cannot shoulder the responsibilities. That is a bigger concern. How come they can make a statement? They are making a statement because you are projecting it in that way. Because ये मन में कुछ धाराएं बन चुकी है जो आप निकाल दोगे. Now the projection will be very strong. At least once, you have to stand against all these people and tell them, tell all these naysayers, tell all these people who are saying, no, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, करके दिखाओ, तभी वो मानेंगे. Now they will change their
आउटलुक टुवर्ड्स यू। अब ये बोलेंगे नहीं ये बंदा कर सकता है या बंदी कर सकती है। नाउ दे विल नॉट मेक एनी लूज स्टेटमेंट बिकॉज you have projected your strength, you have explored your potential, the skills, and given them an example by performing or by achieving the things. जो वो बोल रहे थे नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, आपने वही तो करके दिखाना है, नहीं कैसे कर सकते। They cannot make a loose statement. That too of you? No, not allowed. You should not allow. Your projection should be very strong. It should be positive. क्योंकि ये अगर आप अलाउ कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत एब्सर्ड है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब आप इमोशनली इतने आइसोलेट हो जाओगे, आप अपने आप को आइसोलेशन में डालते जाओगे। नहीं नहीं रे, मैं तो ये बस का बात नहीं है, तो मैं इनके में नहीं जाऊंगा, उसमें नहीं जाऊंगा, इसमें नहीं जाऊंगा। अरे यार तुम इसमें नहीं जाओगे, उसमें नहीं जाओगे, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा। ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी ना। आइसोलेशन से जिंदगी कैसे चलने वाली है? When you are capable of, that is the concern. अरे आपके पास कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, आपने एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि किसी और ने बोल दिया तुम नहीं कर सकते। आपने आजमाया नहीं, करना चाहिए ना। Whenever I'm talking of all this, please understand that we are talking of only legal things. The गुंडागर्दी नहीं, legal things. Now these emotional isolation, it will take you to stagnancy ना। कहाँ जाओगे? अकेले में बैठे हो, अभी क्या यार तकदीर ही ऐसी है। तकदीर? अरे तुम नहीं कर रहे हो, तकदीर को क्यों कोस रहे हो? तुमने लिखी अपनी तकदीर ऐसे। You projected yourself weak and hence they have reacted accordingly. आप करके दिखाओ, the projection will be strong and positive. No one will dare to say that ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। करना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए, अचीवमेंट होनी ही चाहिए। हो सकता है, पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड you don't compare yourself with others, you compare with your own past. कितना इंप्रूवमेंट हुआ, then you are on the right path. प्रोजेक्शंस कंपैरिजन से नहीं होते हैं फ्रेंड्स। प्रोजेक्शंस अपने खुद के अचीवमेंट से होते हैं, अपने खुद के काम से होते हैं, अपने खुद के बलबूते पर किए हुए अचीवमेंट से होते हैं। और ये प्रोजेक्शंस आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रांग रिलेशंस देते हैं। मतलब रिलेशनशिप बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि टूटती नहीं है, बिकॉज नाउ यू आर वेरी स्ट्रांग। यू आर नॉट कंसिडरिंग कि आई एम वल्नरेबल टू द थिंग्स। कोई बोलेगा तो मैं चला जाऊंगा, कोई होगा तो ऐसे नहीं होता है। ये मेरी जिंदगी है, मैं कर सकता हूं। ये एटीट्यूड जब आ जाएगा, then no one can stop you, friends. Automatically this being vulnerable is dangerous, ये अपने आप धारा निकल जाएगी। आपको भी समझ में नहीं आएगा कब चली गई है, because now you have decided to take on directly or head on कि नहीं, कैसे करके दिखाऊंगा, है मेरे पास स्किल, है मेरे पास हौसला, मैं करूंगा। ये जब हौसला आ जाता है तो ये बाकी जो लिमिटिंग बिलीफ से धीरे धीरे निकल ही जाती है। सो इफ यू आर अलाउइंग योरसेल्फ टू बी इन द आइसोलेशन, तो स्टैग्नेंसी कर जाओगे। स्टैग्नेंसी, आई हैव ऑलवेज स्टेटेड, इट कम्स विथ स्ट्रेस। स्ट्रेस, इट कम्स विथ अ एडिशनल फ्रीबी। मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिसिन आता है ना, वो फ्री आता है, उसमें स्ट्रेस आ जाएगा तो वो अपने आप ही आ जाता है। So where you are leading to? Loneliness. Now you are deteriorating yourself. आप नीचे की तरफ जा रहे हो। तो क्या, हमको तो ग्रोथ करना है। ग्रोथ करना है तो इंग्रेडिएंट ऑफ दिस जो लिमिटिंग बिलीफ है उसको निकालना ही पड़ेगा। We have to take it on. Find a way out. Challenge every negative belief. Navigate your life through the challenges the life poses. Remember one thing, friends, you are not an exception to the challenges that life is posing. Every person
Every person has got problems in his life, or he has faced to challenge many challenges of life that life is posing to him. We have to navigate our life through the challenges. That is life. And that is what we are moving towards. लेकिन जब जीना है तो सक्सेसफुली क्यों नहीं? क्यों किसी के और के बलबूते पे मैं जीऊं? नो। कोई और कैसे मेरे तकदीर के बारे में डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता। आपने ही करना है। आपकी तकदीर आपकी जिंदगी है, डिसीजन आपको ही लेना है। सो आप जो प्रोजेक्ट करोगे वही आपके पास आएगा। इफ यू आर प्रोजेक्टेड दैट यू आर कैपेबल, यू आर स्ट्रांग इनफ, ऑटोमेटिकली द पीपल विल स्टार्ट सेइंग, अरे इसको पास जाओ यार, ये आदमी सॉल्यूशन देगा आपको, ये आदमी कर सकता है। नाउ यू आर नॉट टोल्ड देम एनीथिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी, but yet they are believing in you because that is what you have projected by your performance. मे बी पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसे थोड़ा सेटबैक आया होगा, लेकिन आपने उसमें से भी आप उभरे। आज आप जिस भी मतलब जहां पे भी हो, वॉट एवर स्टैंडर्ड यू आर इन और यू आर एट, इज वॉट यू हैव डन फॉर द पास्ट ईयर्स। मतलब आप अभी जिस मुकाम पे हो, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए जो भी आपने किया उसी का नतीजा है। तो आपने जितने लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए उनके ऊपर मात करके ही आप अभी यहाँ तक पहुंचे। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके पास कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। वी आर थिंकिंग, यस आई डिड कम अक्रॉस मेनी चैलेंजेस, आई हैव ओवरकम दिस चैलेंजेस and I have reached this position today. Now I have to achieve more. Yes, I can. This is where we are making the difference, friends. Yeah, yes, I can. We didn't say it earlier. We have gone through all the challenges successfully. Problems आए, हम उभरे उसमें से, तभी तो आज के मुकाम पे पहुंचे हैं। तो हमने चैलेंजेस फेस किए थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि मेरे अंदर जो लिमिटिंग बिलीफ्स है उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अभी जब मैंने सोचा कि अरे इतने सारे प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में थे, लेकिन तब उनसे उभर के आज इस मुकाम पे पहुंचे, तो आगे भी जाऊंगा। आई ऑलवेज से इफ यू आर बॉर्न पुअर, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। तो किसी के हाथ में नहीं है यार, वो तो भगवान ने भेज दिया आपको। कहाँ किसी फैमिली में आपने आ गए। But if you are dying poor, then that is your problem, that you didn't work on yourself and you are not attended to your limiting beliefs. Why limiting beliefs? Because once you remove this, मन में बसी धाराएं, अगर जो गलत धाराएं हैं, निगेटिव धाराएं हैं, उसे अगर निकालोगे नहीं, तो वो आपका दिमाग को क्या इंस्ट्रक्शन देगा? वो हमेशा नन्ना नन्ना करता रहेगा, नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। Once you have removed these limiting beliefs, you are on the runway to success, on the point of takeoff. That is what we are at. So you have to challenge these limiting beliefs to overcome them. So you have to understand क्या गलत हो रहा है। चलो ठीक है, गलतियां हो सकती है, लेकिन सुधार भी तो चाहिए। So we have to find a solution to that. So you have to be open and authentic in your actions. मतलब नहीं ऐसा ही है तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, नहीं बाबू मुझे इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। ऐसे करोगे तो कोई इंप्रूव होगा ही नहीं ना। यू से यू आर नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट यू मे फेस, बट यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन। आपके पास सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, बट यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम एक्सपीरियंस पीपल। कोई तो आपको हेल्प करेगा। आप अप्रोच करोगे तो करेगा ना। हर मुश्किल का सामना आपको करना ही होता है। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हमको सॉल्यूशन सामने होता है, लेकिन नजर नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तो हम किसी जानकार दोस्त के साथ या किसी एक्सपीरियंस के साथ या सीनियर पीपल के साथ अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन नजर आता है, वो भी बोलता है ये क्या सामने तो है। एंड देन यू रियलाइज दैट आपने इतना अपने आप को शेल में डाल दिया, तो बहुत प्रॉब्लम है।
लेकिन सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिया नहीं था, बस थोड़ा सा ओपन हो गए, समझ में आ गया। उसने भी हेल्प इसके लिए कि बिकॉज यू आर ऑथेंटिक, he believed in what you were doing, he believed that whatever you are up to is the correct path and the right path. This belief is your projection, and his action to it or reaction to it is what you have projected. तो अगर आपने ये प्रोजेक्ट किया है कि अरे हाँ मैं ऑथेंटिक हूं, नाउ ऑटोमेटिकली द रिपल इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर। ऑथेंटिक आदमी है, सच बोलता है, हेल्प करना चाहिए। कभी कभार आदमी को प्रॉब्लम में आ सकता है, पीपल हेल्प, बट यू हैव टू बी ऑथेंटिक एंड यू शुड बी एबल टू प्रोजेक्ट इट करेक्टली, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। झूठ ज्यादा देर नहीं चलता है फ्रेंड्स, पकड़ में आ ही जाता है। आप अपनी जिंदगी के बारे में देखिए, जब आपने आजू बाजू में देखा दोस्तों के साथ बातें करते समय, फैमिली मेंबर्स के बाद जब गॉसिप्स होते हैं तब भी आप बात करते समय आपको समझ में आता है कौन सा आदमी झूठ बोल रहा है, कौन सा आदमी सच बोल रहा है ना। और हम घर में भी बात करते हैं, नहीं रे झूठ बोल रहा था वो तो ऐसे ही पकाव करता है ना, ये हमारी स्लैंग लैंग्वेज है। ये कैसे होता है? हम जानबूझ के तो एनालाइज नहीं करते, लेकिन पकड़ में आ गया ना, अरे समझ में आ गया वो झूठ बोल रहा था। See this process that is called image creation। अगर वो आदमी का प्रोजेक्शन आपकी तरफ ऐसा है तो आपने उसकी इमेज क्या बना ली, नहीं वो झूठ बोल रहा था। You see that is not allowed friends in growth process। You have to be authentic, you have to be truthful to yourself। hence I say don't compare yourself with others। उसमें क्या हो जाता है, we are in always in the mixed thoughts and we consider ऑटोमेटिकली, हम खुद नहीं करते लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाता है, अरे उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। अरे है तुम्हारे पास। ये जो तुम अपने खुद के बारे में निगेटिव सोच आ जाती है, वो इस वजह से आ रही है बिकॉज यू आर कंपेयरिंग यूर सेल्फ विथ अदर, दैट टू कंसिडरिंग यूर सेल्फ ऑन द लोअर पाथ। ओह, दैट इज नॉट अलाउड। भगवान ने डिफरेंस नहीं किया, आप क्यों कर रहे हो? भगवान ने इंसान बनाते समय सबको एक दिमाग, दो आंखें, दो हाथ, दो पांव, सब कुछ तो दिया। और जिनके पास नहीं है, उनको फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन जो है, दे हैव गॉट दैट स्ट्रेंथ। आई हैव सीन मेनी, यू कैन आल्सो सी एनी टैलेंट शो ऑन द टीवी। सी देयर आर सो मच ऑफ द टैलेंट every person has। so why are you comparing yourself with others? And that too you are considering yourself to be on the lower path। why? तो आप क्या कर रहे हो, नहीं उसके पास सब, मेरे पास नहीं, उसकी तकदीर बहुत अच्छी है, तुम्हारी तकदीर क्या बुरी है? अरे हाँ, मैंने सोचा ही नहीं है। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मैं उसके बारे में सोच रहा था। सोचना किसके बारे में? खुद के बारे में। तुम्हारी तकदीर में क्या कमी है? अरे मैंने तो किया ही नहीं। हाँ तो तुमने एफर्ट्स नहीं लिए। हाँ लेने चाहिए तो मैंने, मेरे पास है कि नहीं? है ना। अब ये है कि नहीं, ये लिमिटिंग बिलीफ आ गया, तो निकालना चाहिए। एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, यू हैव द स्किल्स। आई ऑलवेज से एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स। हर कोई उसी फील्ड में मास्टर नहीं हो सकता, बट every person has got different set of skills। so once you understand these, you have to set your boundaries। अब आपको पता है आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। you have to improve on your weaknesses, work on your strength, setting up your boundaries towards your goal। अब जब ये फोकस रहेगा, अब किसी से कंपैरिजन या मेरा इनग्रेंड इन बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ नहीं रहने वाला, ऑटोमेटिकली दैट विल शेड अवे, जाने वाले वो सब चीजें। बिकॉज नाउ यू आर एक्सेप्टेड द इम्परफेक्शन, यू एम्ब्रेस द इम्परफेक्शन। आपने ये जान लिया कि हर आदमी में ना कुछ तो कमी होती है, कुछ अच्छा ही रहती है, कुछ बुराई रहती है। हमको बुराई इग्नोर करनी है, अपने खुद में कमियां उसमें इंप्रूव करना है। वी हैव टू टेक द फेल्यूर्स, वी हैव टू टेक द नेगेटिविटीज as an opportunity to learn from and remove that or overcome those things and set the boundaries।
बाबा यही है, ये गोल है मेरा, अब इसी में मेरे को काम करना है. दिस इज व्हाट आई एम एंड दिस इज व्हाट माय स्ट्रेंथ्स आर, दीज आर माय वीकनेसेस, आई एम इम्प्रूव ऑन माय वीकनेसेस एंड वर्किंग मोर ऑन माय स्ट्रेंथ्स टू अचीव माय गोल. द वंस दैट इज फिक्स्ड इन माय माइंड, in my brain, the mind and brain will be on the same page. Results will be more successful in shorter time. So, you have to be prepared to bounce back from every setback you receive. अब ऐसा तो है नहीं ना कि किसी आदमी को सेटबैक आया ही नहीं. आपको पता ही नहीं है कि आपके माता पिता ने कितने प्रॉब्लम्स सहन किए आपको बड़ा करने के लिए. कभी उन्होंने बोला नहीं था. माँ ने कभी आपको ये बोला नहीं था कि मैंने सुबह खाना नहीं खाया लेकिन तुमको खिलाया. बोला था क्या? नो, शी डिडंट टेल यू. शी ओवरकम द प्रॉब्लम सो दैट हर चाइल्ड में लिव ऑन फर्दर. तो ये जो बाउंस बैक का तरीका है, अब उसके पास वो तरीका था. But she didn't tell you that. Your parents never told you what problems they were faced in the life to make you stand on your feet. और आप होके मन में धारणाएं लेके बैठ गए कि मैं नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकते? So you have to prepare yourself to bounce back from setback. उनके पास भी तो प्रॉब्लम आए होंगे. आपके घर में जितने सीनियर एल्डर मेंबर्स हैं उनको पूछो, उन्होंने भी तो प्रॉब्लम फेस किए होंगे. बट दे डिडंट गिव अप. दे स्टूड बाय स्ट्रांगली विद द एथिक्स, विद ऑथेंटिक बिहेवियर, एंड दे हैव एनरिच्ड देमसेल्व्स विद द नॉलेज ऑफ हाउ टू ओवरकम द challenges. And that knowledge may come to help you if you open up authentically with them to understand how to overcome the challenges. हौसला आपने रखा है, आपने सोचा है कि मुझे कुछ पाना है, तो खुद को आजमाने की कोशिश तो कीजिए. करना चाहिए ना. और नहीं करोगे तो जहां है वहीं रहोगे या उससे भी नीचे चले जाओगे. तो वो जो डर है कि मुझे आजमाने का डर है, मेरे पोटेंशियल्स को निकालने का मुझे डर लग रहा है, एक्सप्लोर करने का डर लग रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था. इसीलिए वो डर हमको निकालना है. इसीलिए मैंने कहा वो खौफ जो दिल में है जाने दो उसे. वो खौफ जो दिल में है जाने दो उसे. जिंदगी का असली रंग पाने दो उसे. कमजोरी नहीं ये हौसला है हमारा. खुद को खुल के एक बार आजमाने दो उसे. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Till then, bye-bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.